Assalamu alaikum. Welcome to our podcast Pakistanis in Bulgaria. मेरा नाम माहम है और मेरे साथ हैं मेरे husband Kamran. You can call him Kami. In our podcast, we will share our journey of faith, farming and freedom, from homeschooling to homesteading and everything in between. So let's dive in. हमने खरीदा है लैंड बुल्गारिया में last week. So what would you like to say about it, Kamran? Assalamu alaikum, guys. Yes, so we bought a 0.31 acre plot of land in Bulgaria, which is 1,540 square meters of land in Bulgaria. फिर ये कैसे आपके दिमाग में आया कि बुल्गारिया में आपने घर खरीदना है? Well, this is northern Bulgaria, so on the border of Romania. Very lovely towns close by. I will mention some. I will not mention the exact village that we are in currently, but Pleven, Switchrov, Nikopol are places close by. And to answer your question, because it is very, very cheap. Okay. So आप लोगों में से जिसको नहीं पता, बुल्गारिया is one of the oldest cities in Europe. अभी इस country के बारे में इतना लोगों को नहीं पता, but we visited this country and this is a very, very beautiful place to visit. Sorry, can I say? Sorry, you're right कि नहीं पता, लेकिन it's not like नहीं पता. Of course, it's the oldest country, but what our concept is of countries like Bulgaria, Hungary, Serbia, Romania is that they are just countries like Soviet Union type era sorts, but no, that's not right. We need to get our groups right. They are much more developed countries than we can even imagine. So most of the countries are developed, like Romania, Hungary, Germany that we passed through, but Bulgaria is still underdeveloped. What would you say about that? And that's the reason the properties are very cheap. Back to our point. So you asked the question, cheap, yes? Oh, well, I said yes. Why Bulgaria? So why Bulgaria is because it's cheap. And you want to know how much I paid? We paid 5,000 euros, so 5k euros for 0.31 acres of land. That is amazing. Wonderful. So what are you planning to do on that land? Loads of things. All right. हम इसके बारे में बाद में discuss करेंगे. But why did you not choose Sicily or any other European country? Because as we all know that, most of us know that वहाँ पे Euro house भी मिलते हैं. You can get those as well. जी बिल्कुल you're right कि वहाँ पे देखो ना सिसिली में यूरो हाउस हैं. फिर किसी ज़माने में स्पेन में ना 800, 900, 1000, 2000, 3000 यूरो की ना ज़मीनें मिल जाती थी. But now that's not the case of Spain anymore. And for euro houses in Sicily, Sicily has been in the European Union for years. Italy has been in the European Union for years. It's been part of the European Unions. And prices have not gone up there. People are going there. Yes, I agree. People are getting more. महंगा है, अच्छा है, Italy है, ये है, तो वो ठीक है, जाओ. लेकिन वहाँ पे आपको एक टाउन हाउस मिलेगा. हाँ जी. और उस टाउन हाउस पे भी आपने तकरीबन 70,000-80,000 यूरोस लगाएंगे तो वो कुछ बनेगा. हाँ जी. क्योंकि आप यू कांट डू जुगारी स्टाफ. आप जुगाड़ लगा के नहीं उसको रिपेयर कर सकते. क्यों? अगर आप करेंगे तो आपके आगे पीछे के घर भी साथ गिरेंगे. एंड यू विल बी लायबल फॉर दैट. Thank you. So tell us more about Bulgaria, the weather, what currency do they use, and about the people and the language. So guys, Bulgaria currency is euros. Currently it's lev, but it's using it's going to convert to euros in January. So 2026 January is going to embrace the euros. We got 4 seasons in Bulgaria, guys. The summer, the winter,
the spring and the autumn, all very very nicely visible. हम अभी समर में होके आए हैं and it was scorching hot. इतनी गर्मी में पाकिस्तान ज़्यादा आ गया था. So what to look for when buying a land? So when you're buying a land in Bulgaria, there's two things I would say. अगर आप अपने personal use के लिए ले रहे हो, then there's different things you should look out for. And if you're buying for investment, so I will answer the shorter question. If you're buying for investment, just buy anything that's available. Buy. जो मिल रहा है खरीदो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी. क्यों? क्योंकि अभी यूरो नहीं है, लेव में है. ठीक है, लोग अपना घर बेच ही नहीं रहे वहाँ पे. ठीक है, इतना है. सो बाय वट एवर यू फाइंड. आई हैव प्रॉपर्टीज अराउंड द एरियाज अवेलेबल, सो यू कैन रीच आउट. Not I don't have them, I have the contact available, so you can reach out and हम कुछ discuss कर सकते हैं if you are an investor हैं जी. ठीक है, or I can get you directly in contact with the people who are selling the properties because I know the locals over there now. ठीक है, but buy as an investment. और अगर आप पर्सनल के लिए ले रहे हो, so look for every single detail. एरिया कैसा है, वहाँ पे पानी है, ज़मीन का पानी है कि नहीं है, आपके घर में वेल है, आपका मेयर कैसा है, आपके नेबर्स कैसे हैं. Personally, I wanted a corner plot and I got a corner plot. So what were the prices of the property few years ago? If you go back a few years ago, you would say कि यार जितनी साइकिल मिलती है ना, लोग घर बेच रहे थे 500, 600, 700, 800, 900, 1000. ये मैं 2014-15 की 12-14 की प्राइस में बता रहा हूँ जी. ठीक है, and they started going up 2000, 3000, 4000. Now they're standing at you're looking at a decent amount of plot. Online अगर आप देखो तो around 10, 15, 20 के करीब आपको कुछ मिलते हैं जी. डेरिलिक्ट प्रॉपर्टी है जी, सब कुछ आपको खुद करना है. ठीक है, फिर डिपेंड करता है. अगर आपको उन्हीं की घर के लेआउट में रहना है तो फिर आप थोड़ा सा महंगा ले लो हैं जी, अच्छा घर ले लो हैं. और अगर आपको अपना बनाना है जैसे हम बनाना चाह रहे हैं सब कुछ डिमोलिश करके, तो फिर आप सस्ते से सस्ता लो हैं जी. लेकिन जो ऑनलाइन प्राइसें हैं ना, वो लोग अवेयर हैं सारे कि भाई यूरो आ रहा है, ये है तो वो है. अभी बहुत सारे लोग अनअवेयर भी हैं इन चीज़ों से. सो आई थिंक इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर और इफ़ यू इवन लुकिंग टू बाय फॉर पर्सनल यूज़, अभी इट्स द राइट टाइम. हेंस व्हाई वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट गाइस. नाउ इज द टाइम टू बाय. बाद में फिर ना कहना किसी को बताया नहीं, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ. मैं बता रहा हूँ, अभी ख़रीदो. आज ये हम जून जुलाई शुरू हो रहे हैं जी. वी स्टिल हैव अ फ्यू मंथ्स, 6 months हैं. बाय. आए लोकल बहुत सस्ता बेच रहे हैं. come and visit, reach out, come and visit. Mom, over to you. The prices guys are nothing. चलें जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं हमारे सफ़र के बारे में. हमने कहाँ से शुरू किया, हमें कितने घंटे लगे वहाँ पहुँचने में, कितने दिन लगे, और बीच में हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई, उसके बारे में. चलें फिर, अब आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताएं. जी अच्छा गाइस, वैसे तो सेटनेफ बता रहा था कि 32 hours लगेंगे लंदन से हमारी नॉर्दर्न बुल्गारिया के लोकेशन पे हैं जी. सो लेकिन मैंने सेटनेफ लगाया सिर्फ एज ए नेविगेशन टूल हैं जी. वी डिडंट रियली टेक इट फॉर द टाइम एंड एवरीथिंग बिकॉज वी ओनली वांटेड टू ट्रैवल ड्यूरिंग द डे. वी हैड अ फुल सेटअप विद अस टू स्लीप एंड कैंप एंड एवरीथिंग. सो हमने क्या किया, हम लोग संडे मॉर्निंग को निकले और हम शाम को पहुँचे रेगन्सबर्ग के पास ने एंड ऑफ जर्मनी. सो वी क्रॉस्ड France obviously, and then little bit of Holland, and then Netherlands, and then Germany पूरा दिन travel किया. Of course we had snacks and dinner in between Germany. Regensburg के बाद हमने वहाँ पे autobahn के ऊपर ही हमने ना टेंट लगा लिया साइड पे. 2% pop-up टेंट था हमारे पास, हमने लगा लिया. That was a good experience. What do you think, Mom? That was amazing. I loved it. Yes. थके हुए थे, टेंट लगाया, 2 मिनट लगे, ठक पॉप अप एंड देन सो गए. So one question, why did you choose to travel by car? देखिए ना, it was easier to fly, but we wanted a adventurous trip as a husband wife as well, and as well as Ahil was with his grandmother.
we had the opportunity to travel by car and we had a new car and we thought okay let's give it a go. आपको enjoy तो किया ना, मेरे लिए first time था इतना लंबा ट्रिप करना by car. Okay, so yeah, he's right. हाँ, हम लोग काफ़ी परेशान थे कि हम लोग इतना लंबा सफ़र कैसे करेंगे, लेकिन आई थिंक इट वाज अमेजिंग. बिल्कुल भी पता नहीं चला सफ़र का और बहुत 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 अच्छा सफ़र गुजरा. फिर आप नेक्स्ट डे के बारे में बताएं. जी, नेक्स्ट डे हम लोग ने उठे रेगन्सबर्ग से, फिर हमने एक्चुअली वॉन्डर अराउंड के काफ़ी पूरा दिन हमने ना वहाँ पे ही ऑनेस्टली ज़ाया कर दिया जर्मनी के अंदर. और हम लोग थोड़ा सा ड्राइव किया, हम लोग फिर ऑस्ट्रिया के बॉर्डर के पास जाके हमने खाना खाया शाम को, और वहाँ पे ही हम लोग नहीं एक्चुअली हमने पूरा ऑस्ट्रिया फिनिश कर लिया था और हंगरी स्टार्ट करके हमने रात को हमने हंगरी तक ट्रैवल किया, ऑस्ट्रिया हंगरी ट्रैवल किया और फिर उसके नेक्स्ट डे रोमानिया. और उसके नेक्स्ट डे रोमानिया. बट गाइस लेट मी टेल यू नाउ, है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. टोल्स, ठीक है, ऑस्ट्रिया आपको टोल लेना है. जर्मनी एग्जिट करने से पहले आपको विजनेट लेनी है लाजमी, ठीक है, जो आपको विंडो में लगाना है, ठीक है. हंगरी में भी आपको विजनेट लाजमी लेनी है, ऑनलाइन मिल जाएगी आपको. एंड ऑल्सो गाइज वहाँ पे लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है, इट्स नॉट इंग्लिश. सो ऐप जो है आपके पास होनी चाहिए जो आपको ट्रांसलेट करके दे आपके जो भी आप बात कर रहे हो दूसरे से. जी, एंड आई यूज़ गूगल ट्रांसलेट. मैं आईफोन यूज़ करता हूँ, गूगल ट्रांसलेट यूज़ करता हूँ उसके ऊपर, वेरी इजी फॉर मी. हाँ जी, जो कुछ बोलना है वो सब कुछ ट्रांसलेट करते हैं. हैव इट प्री डाउनलोडेड. जो लैंग्वेजेस हंगेरियन, रोमेनियन, हाँ जी, बुल्गेरियन, जब प्री डाउनलोड करें अपने ट्रिप के लिए अगर आप जा रहे हैं तो. फिर हम लोग ने पूरा नेक्स्ट डे रोमानिया किया. रोमानिया सारा ना ऑफ रोड है, काइंड ऑफ नो मोटरवे, हैं जी, और वेरी नाइस एंड लवली रोड्स, हैं जी. Yeah, we had to choose Romania because we were not able to go through Serbia. Yes. Why? Karan's gonna tell you. So yes guys, so हम didn't know until we reached end of हंगरी से हम लोग जा सकते रोमानिया या सर्बिया. सर्बिया में पता है पासपोर्ट कंट्रोल भी होगा, सब कुछ होगा, जो कि वो यूरोपियन यूनियन में नहीं है. खैर हम लोग पहुँचे, लेकिन मज़े की बात है गाइस, मेरे पास ना लाइसेंस भी नहीं था और गाड़ी के पेपर तक नहीं थे. मैं अल्लाह तवक्कुल निकला था, मेरा लाइसेंस रिन्यू होने के लिए गया हुआ था, हैं जी. मैं अल्लाह के तवक्कुल निकला था, पता नहीं कैसे पहुँचे. खैर वहाँ पे पुलिस वाले में रोका, वहाँ पे बॉर्डर पे, हैं जी. उसने कहा भाई लाइसेंस, पेपर्स, कार, ग्रीन कार्ड. मैंने कहा कुछ भी नहीं है. कहता अच्छा किधर जाने. मैंने कहा बुल्गारिया. कहता इतना अच्छा बंदा था, उसने कहा अच्छा गाड़ी घुमाओ यहाँ से और रोमानिया से चल जाओ, यूरोपियन यूनियन, नो प्रॉब्लम. मैंने कहा शुक्र अल्लाह ताला का, यहाँ से जल्दी से निकलो. और फिर हम लोगों ने कहा यार रोमानिया से हम लोग बुल्गारिया कैसे क्रॉस करेंगे, इतना बड़ा रिवर है डेन्यूब के बीच में. तो नेविगेशन जैसे हम लोग रोमानिया एंटर हुए, उसने फेरी का रूट दिखा दिया हमें. फिर हमने पूरी रात सफ़र किया. रात को हम लोग ने वहाँ पे ही गाड़ी के अंदर सो गए. सुबह उठे, हम लोगों ने कहा सुबह पहुँचेंगे. 12 बजे हम लोग बुल्गारिया एंटर हो गए थे विद अ लिटिल फेरी क्रॉसिंग विच कॉस्ट था 16 euros over to Mam. Oh yes, there is a bridge as well. You can cross the bridge, but जो कि आपको थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा. But I think it's worth paying the 16 euros if you're going towards. डिपेंड करता है आप जा किधर रहे हो. हम लोग निकोपोल प्लेवन के एरिया में जा रहे थे, तो हमारे लिए परफेक्ट वो था 16 euros. एंड इट्स अ नाइस ब्रेक इज वेल इन बिटवीन. वहाँ पे टॉयलेट भी है, नाइस पीपल, यू कैन सिट आउट एंड हैव अ ड्रिंक, हैव अ स्मोक एंड एवरीथिंग वट एवर यू वांट. Yes, it was very very nice in Bulgaria. Very nice weather, very hot, very warm, and they were lovely people there. बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के. और पहुँचते ही जैसे ही मैं गाड़ी से निकली, रोजेस की इतनी अच्छी खुशबू थी. There were loads and loads of roses और बहुत प्यारे. ओके, अब हम पहुँच चुके हैं बुल्गारिया और अब हम जा रहे हैं ऊपर अपनी ज़मीन देखने. अब हम आपको थोड़ा सा बताएंगे अपना एक्सपीरियंस अपनी ज़मीन देखने के बारे में. वेल इट वाज अमेजिंग. सो कारण बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस था आपका. बिल्कुल जी, जैसे हम लोग पहुंचे वहाँ पे तो हमने देखा यार दिस इज लिटरली एट द एंड ऑफ द विलेज एंड वी लाइक दैट, हैं जी. वी डिडंट रिकग्नाइज विच पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी आवर लैंड, या फिर कौन सी हमारा हाउस है. हम लोग पहुँचे अंदर, हैं जी, साथ ही फिर कोने में गाड़ी पार्क की. इट वॉज ऑल ओवर ग्रोन. वी एंटर्ड द साइड फ्रॉम द
आउट बिल्डिंग्स। हमने साथ ही पिक्चर लेके मैंने उसको भेज दी ओनर को कि भाई ये सही है जगह, यही लैंड है कि नहीं। हम तो परेशान हो गए थे यार, ये क्या जंगल है यहाँ पे, लाइक क्या करेंगे हम लोग, घर तो नज़र नहीं आ रहा था। एंड वी पुट अ कैंप ऑन द साइड। जी, फिर हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, लेट्स कैंप फॉर नाउ एंड देन वॉक अराउंड द टाउन एंड विल टेक इट फ्रॉम देयर। फिर हमने वहाँ पे कैंप लगा लिया। उसके बाद वी वॉक डाउन द रोड एंड आई सॉ कार विद अ जर्मन नंबर प्लेट एंड आई सेड टू मॉम, लुक मॉम, देयर माइट बी समवन हु इज जर्मन। एंड वी सॉ अ बॉय वॉकिंग अप, he drove down in that car and then I stopped him when he was driving back up. I said, oh भाई जर्मन बात करते हो? मैंने उससे जर्मन में बात की, चूँकि मैं जर्मन भी बोल लेता हूँ। फिर उससे दोस्ती होगी, वो लोकल बुल्गारियन था, हैं जी, तो काफ़ी हेल्पफुल था। मैंने उसको कहा भाई मुझे हेल्प चाहिए गार्डन क्लियर करने के लिए, तो वो एंड एक्सेप्ट वो आपको आगे की पॉडकास्ट में बताएंगे सारी डिटेल स्टोरी। फिर हम उसको गार्डन दिखाने गए शाम को। जैसे ही हम लोग बाहर निकले आगे खड़ी थी पुलिस। हम लोग हके फके रह गए। हमने कहा ये क्या हो गया। Yeah, the police asked for passports and हमारे passports ले लिए उन्होंने, और काफ़ी देर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, like about an hour we were waiting कि अब हमारे पासपोर्ट हमें वापस मिलेंगे और क्या होने वाला है, क्यों हमें रोका है और हमें क्यों यहाँ पे खड़ा किया है। जी, वो पूछ रहे थे भाई, वो दे वर जस्ट फाइंडिंग आउट हु वी आर। मैंने कहा हम लोग बस यहाँ पे आए हैं घर खरीदने के लिए, ये तो वो। खैर दे सेड ओके दे चेक we came all clear, of course we don't have anything else on against us, so हम सब क्लियर आए। they said okay you can camp, but they were very nice और हमें बता रहे थे कि भाई जब किसी से घर खरीदो उसके पेपर वो लाजमी चेक करना, ये तो वो and very helpful I think to be honest, and we were quite reassured कि यार अगर कोई आ जाता है ऐसे तो पुलिस भी आएगी, हैं जी। so quite enjoyed that safety wise, हैं जी। खैर हमने वहाँ पे कैंप किया 2 days एंड फिर फ्राइडे मॉर्निंग को हम लोग वापसी के लिए निकल गए। गाइस ऑनेस्टली द वे वाज वेरी नाइस। ऑन आवर वे बैक आई ड्रोव कंटिन्यूसली, हैं जी, एंड इट टुक मी अराउंड 28-30 hours to get back to London, हैं जी। Obviously driving there was a bit new for me, so I took it nice and slow and enjoyed the drive. वापसी पे मेरी और माम की भी आर्गूमेंट होती रही रास्ते में, काफ़ी पॉडकास्ट सुन के हम लोग सुनते आए। माम आप बताओ। हाँ जी, हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। ऑफ कोर्स बुल्गारिया से निकलने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत पुरसुकून, बहुत ज़्यादा जो है पीसफुल जगह है। लेकिन ऑफ कोर्स मेरा बेटा भी लंदन में था, वो हम उसको भी मिस कर रहे थे, सो वी हैड टू कम बैक। बट या सो वी मेड so many plans on our way back कि अब हमें किस तरह से हर चीज़ करनी है। so for now we are deciding, we are making plans, so we might get a caravan and we might just move to Bulgaria very soon, so stay tuned guys if you want to know more about our journey. Yes guys, so Maham has given you a rough estimate what we are planning to do. So I'm hunting for a caravan guys, to hook onto my car and take some tools and tackle everything myself, grass cutting and watering and solar panels, etc etc etc. So stay tuned to our podcast. I hope you liked it. Comment. This is a live podcast. We will be sharing live updates probably monthly starting off, and then going forward weekly once we have moved away. So all help and support will be welcome, and I am here to help as well. This podcast is for you guys to be knowledgeable and be aware that you can start your retired life in your 30s and not wait until you're 65. Thank you. Allah Hafiz.